નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું HR એજ્યુકેશનમાં. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9ના જે વાર્ષિક પરીક્ષાના અસાઇનમેન્ટ સોલ્યુશન છે તેમાં હિન્દી વિષયનું અસાઇનમેન્ટ સોલ્યુશન જોઈશું. તેમાં સૌપ્રથમ વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈએ તો આપણે ખાસ કરીને બધા જ વિષયોના અસાઇનમેન્ટ સોલ્યુશન આપણે મૂકી દીધા છે. ફક્ત હિન્દી અને ગુજરાતીનું અસાઇનમેન્ટ સોલ્યુશન આપણે બાકી રહેલું છે, તો તેમાં આપણે હિન્દી વિષયનું અસાઇનમેન્ટ સોલ્યુશન આજે આપણે જોવાના છે. તેમાં સૌપ્રથમ પ્રશ્નપત્ર કા પ્રારૂપ એટલે કે પ્રશ્નપત્રનું પરિરૂપ આપણે જોવાનું છે. સંપૂર્ણ પાઠ્યક્રમ અહીંયા આપેલ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત આપણે શરૂઆત કરીએ તે પહેલાં વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો હજુ તમે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો મહેરબાની કરીને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને નીચે આપેલા બેલ આઇકોનને ક્લિક કરો કે જેથી ઓલ નોટિફિકેશન તેમાં ઓન થાય, ઓન કરો અને બને એટલી અમારી ચેનલને તમે શેર કરો કે જેથી બાકીના વિદ્યાર્થીઓ જે છે જેઓને અસાઇનમેન્ટ મળી નથી શકી તેવા વિદ્યાર્થીઓને પણ આ વિડીયોના લાભ મળે. તો જોઈએ વિભાગ એ. એમાં ગદ્ય વિભાગમાં સૌપ્રથમ તમારે રહેશે रिक्त स्थानों की पूर्ति, विधान पूर्ण करना, सही विकल्प चुनकर एक एक वाक्य में उत्तर, 2-3 वाक्य में उत्तर, 5-6 वाक्यों में उत्तर. कुल मिलाकर आपका मार्क रहेगा 16 એટલે કે 16 માર્કનો તમારો આ પ્રશ્ન રહેશે. વિભાગ બીમાં પણ તમારે 18 માર્કનો પ્રશ્ન રહેશે. વિભાગ રહેશે તમારો પદ્ય વિભાગ આવશે અને એમાં એક જે પ્રશ્ન એડ થાય છે તે કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરો. પ્રશ્ન 19માં એ તમારો 2 માર્કનો છે, એમ તમારે 18 માર્ક થશે. ત્યારબાદ વિભાગ સીમાં વ્યાકરણ વિભાગ છે, તેમાં મુહાવરે કા અર્થ, શબ્દ વિરોધી શબ્દ, પર્યાયી શબ્દ, શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ, ભાવવાચક સંજ્ઞા, વિશેષણ, કર્તવાચક સંજ્ઞા, સમાસ, કહાવત, સંધિ છોડો, સંધિ જોડો અને વાક્ય શુદ્ધ કીજીએ એવા તમારા પ્રશ્નો રહેશે. તેમાં જોઈએ તો સૌપ્રથમ તમારે મુહાવરે કા અર્થ જે છે 2 માર્ક, વિરોધી શબ્દ 2 માર્ક, પર્યાય શબ્દ 2 માર્ક, શબ્દ સમૂહ 2 માર્ક, ભાવવાચક 2 માર્ક, વિશેષણ 2 માર્ક, કર્તવાચક 2 માર્ક, સમાસ 2 માર્ક. ત્યારબાદ કહાવત 1, સંધિ 1 અને સંધિ જોડો 1 અને વાક્ય શુદ્ધ 1 માર્કનું રહેશે. ત્યારબાદ જોઈએ વિભાગ ડી લેખન વિભાગ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, લેખન વિભાગમાં તમારે સૌપ્રથમ રહેશે પરિચ્છેદ વાંચીને પ્રશ્નના ઉત્તર આપવાના રહેશે. પરિચ્છેદ કો પढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर લખીએ એ તમારો 6 માર્કનો રહેશે. ત્યારબાદ પત્રલેખન એ તમારો 5 માર્ક રહેશે. એના અથવામાં રહેશે અહેવાલ વૃત્તાંત, તે પણ તેના માર્ક પણ 5 છે, અથવામાં છે એટલે. ત્યારબાદ કહાની લેખન તે તમારે 5 માર્કની રહેશે. વિચાર વિસ્તાર તમારો 3 માર્કનો રહેશે તથા જે નિબંધ છે તે તમારો 7 માર્કનો રહેશે. આપણે જોઈએ તો 6 અને 5 11, 11 ને 5 16, 16 ને 10 26, 26 માર્કનો તમારો આ વિભાગ ડી રહેશે. ઓકે. विभाग है गद्य विभाग. सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 प्रत्येक का 1 अंक. 3 मार्कની તમારી ખાલી જગ્યાઓ રહેશે. તેમાં સૌપ્રથમ ગદ્ય 3 પ્રથમ પરીક્ષા કે પાઠ્યક્રમ में से એની જે ખાલી જગ્યાઓ છે તેના જવાબ સાથે આપણે અહીં મૂકી દીધું છે. મીન્સ જવાબ તમને ટીક કરી દીધા છે. तेज जो तो ड्राइवर को मारपीट से खाली जगह ने बचाया. तो लेखक भारतवर्ष सदा कानून को खाली जगह के रूप में देखता रहा है. तो धर्म व्यक्ति जो भी करेगा लोग उसमें खाली जगह खोजने लगेंगे. तो दोष मेरा मन खाली जगह होने की ज़रूरत नहीं है. तो उदास कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम खाली जगह हो गई. समाप्त. त्यारबाद गद्य 12 द्वितीय परीक्षा के पाठ्यक्रम में से रानी के साइज का नाम क्या था, खाली जगह था. तो छुट्टन. रामा ने घोड़ी का नाम खाली जगह बताया. तो ताज रानी. रानी के लिए बरामदा खाली जगह बन गया था. तो अस्तबल. सोने के कड़े खाली जगह के कानों में पहना दिए. तो ताज रानी. अपराधियों को खाली जगह पर चढ़ाकर देश निकाला दिया जाता था. तो सफ़ेद गधे. गद्य 21 शेखर का बचपन खाली जगह विचारों से अभिभूत था. तो क्रांतिकारी. बीजू. खाली जगह की एक लहर आई और देश उसमें बह गया. तो असहयोग. शेखर के घर में खाली जगह वस्तुओं का उपयोग होता था. तो विदेशी. शेखर की पहली आया खाली जगह थी और अंग्रेजी ही बोलती थी. तो ईसाई. गांधी का खाली जगह दुश्मन का मुंह हो काला. तो बोलबाला. ત્યારબાદ ગદ્ય 23 ધર્મ
वीर भारती ने खाली जगह जैसे प्रतिष्ठित साप्ताहिक का संपादन कार्य किया। तो धर्मयुग भारती जी के पिता ने खाली जगह के आह्वान पर सरकारी नौकरी छोड़ दी। तो गांधी जी माँ ने पिक्चर देखने के लिए दिए हुए 2 रुपये में से उन्होंने खाली जगह नाम की पुस्तक खरीदी। तो देवदास। विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા ખાલી જગ્યાઓ તમારી જે પૂછાઈ શકે તેવી છે અસાઇનમેન્ટમાં તે પૂર્ણ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, HR એજ્યુકેશનને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। જોઈએ ત્યારબાદ सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4, 5, 6 प्रत्येक का 1 अंक। 3 मार्कનું તમારું આ વિકલ્પ રહેશે। તેમાં ગદ્ય 5માંથી જોઈએ તો પ્રથમ પરીક્ષા કે પાઠ્યક્રમ में से એમાં તમારે વિકલ્પો તો શોધવાના છે જ, પણ સાથે સાથે વિધાન લખવાનું છે તમારે। આ જે રીતે અહીં આપેલ છે તે પ્રમાણે કે जूही के अनुसार रानी को निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि, तो जवाब आवश्य क वे गीता पढ़ती थी। तो તમારે એની નીચે લખવાનું પણ છે કે जूही के अनुसार रानी को निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि वे गीता पढ़ती थी। આ રીતે તમારે વાક્ય પણ બનાવવાના રહેશે। ત્યારબાદ रानी का मन कहता था कि वह उनके जीवन का अंतिम युद्ध था। उत्तर, रानी का मन कहता था कि वह उनके जीवन का अंतिम युद्ध था। ब जवाब आवश्य। ત્યારબાદ ત્રીજું, पेशवा की हार से रानी लक्ष्मीबाई खुशी हुई। रानी लक्ष्मीबाई को खुशी हुई क्योंकि, में जवाब आवश्य क पेशवा की आंखें खुलने के लिए यह जरूरी था। तो उत्तर आ रीते लखाशे कि पेशवा की हार से रानी लक्ष्मीबाई को खुशी हुई क्योंकि पेशवा की आंखें खुलने के लिए यह जरूरी था। चौथुं, जूही बातों बातों में सेनापति तात्या का पक्ष लेती थी क्योंकि, तात्या के प्रति उसके मन में प्रेम था। तो जवाब बन से जूही बातों बातों में सेनापति तात्या का पक्ष लेती थी क्योंकि तात्या के प्रति उसके मन में प्रेम था। गद्य 11 द्वितीय परीक्षा के पाठ्यक्रम में से एમાં पहलू, लेखक को मोहन की बात कहानी कथा सुन रहे हो ऐसी लगी क्योंकि, लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सहृदय व्यवहार कर सकता है। उत्तर તમારા પ્રમાણે લખવાનો રહેશે। ત્યારબાદ ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह पहुंचा दिया क्योंकि, एम आवश्य क डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी। उत्तर आवश्य ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह पहुंचा दिया क्योंकि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। ત્યારબાદ ત્રીજું, मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि, मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया न समझा जाए। उत्तर नीचे लखेल है। ત્યારબાદ चौथું, बात करते हुए मोहन रुक गया और चुप्पी सी छा गई क्योंकि, कोई अवांछित घटना घटी थी। उत्तर नीचे मुजब है। ત્યારબાદ ऑटो वाला शादी के प्रस्ताव से चकरा गया क्योंकि, वह आकस्मिक था। जवाब है ऑटो वाला शादी के प्रस्ताव से चकरा गया क्योंकि वह आकस्मिक था। ત્યારબાદ गद्य 21, शेखर ने दियो से तेल लेकर विदेशी कपड़े जलाए क्योंकि तेल का पीपा नौकरों के कब्जे में था। शेखर ने दियो से तेल लेकर विदेशी कपड़े जलाए क्योंकि तेल का पीपा नौकरों के कब्जे में था। बीजू, शेखर ने अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया क्योंकि उसे वह बुरा और अपमानजनक लगा। जवाब आपसे शेखर ने अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया क्योंकि उसे वह बुरा और अपमानजनक लगा। ત્યારબાદ गद्य 23, भारती जी के पिता ने सरकारी नौकरी छोड़ दी क्योंकि, गांधी जी ने उसके लिए आह्वान किया था। उत्तर તમારે આ પ્રમાણે લખાશે। ત્યારબાદ भारती जी के पिता ने तब बहुत कमाया था जब बर्मा रोड बन रही थी। ત્યારબાદ એમાં લખાશે भारती जी के पिता ने तब बहुत कमाया था जब बर्मा रोड बन रही थी। उत्तर તમારે આ મુજબ લખાશે। ત્યારબાદ અહીં જે ઉત્તર છે તે સ્કીપ થયો છે, તમારે લખી દેવાનું છે કે भारती जी के पिता ने तब बहुत कमाया था जब बर्मा रोड बन रही थी। ત્રીજું, भारती जी के पिता ने अपनी अलमारी में से कुछ चीज़ें हटा दी ताकि पुत्र वहाँ अपनी लाइब्रेरी बना सके। भारती जी के पिता ने अपनी अलमारी में से कुछ चीज़ें हटा दी ताकि पुत्र वहाँ अपनी लाइब्रेरी बना सके। ત્યારબાદ भारती जी की माँ को चिंता रहती थी क लड़का कहीं साधु बनकर भाग ना जाए। उत्तर તમારો બનશે भारती जी की माँ को चिंता रहती कि लड़का कहीं साधु बनकर भाग ना जाए। 5वां, लोकनाथ की दुकान पर पिता ने बालक भारती को ताज़ा अनार का
शरबत पिलाया। तो उत्तर बनશે लोकनाथ की दुकान पर पिता ने बालक भारती को ताज़ा अनार का शरबत पिलाया। ત્યારબાદ ગદ્ય 16 નિમ્નલિખિત આમાં આવશે તમારે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે એક એક વાક્યમાં ઉત્તર લખીએ। 4 માર્કનો તમારો પ્રશ્ન રહેશે। 4 પ્રશ્નો પૂછાશે, प्रत्येकના 1 गुण રહેશે। તેમાં સૌપ્રથમ गद्य 16 द्वितीय परीक्षा के पाठ्यक्रम में से एमा गांधी जी किन्हें अच्छे लगते थे। गांधी जी उन्हें अच्छे लगते थे जिनमें गांधी जी बनने की क्षमता है और जो उसका अनुकरण करना चाहते हैं। बीजू भगवान रामकृष्ण परमहंस वर्षों तक योग्य शिष्य पाने के लिए क्या कर देता। तो जवाब आवश्य भगवान रामकृष्ण परमहंस योग्य शिष्य पाने के लिए वर्षों तक रो रो कर भगवान से प्रार्थना करते थे। तीजू जब रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग कौन कौन सा राग लापन लगे। जब रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग आमेदर ठाकुर शपुत राग अलापने लगे। चौथु प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे। तो प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर जैसे थे। आज हमारे समाज में कैसी संस्कृति का बोलबाला है। तो आज हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। ત્યારબાદ गद्य 16 द्वितीय परीक्षा के पाठ्यक्रम में से तेमा पहलो सवाल है महाकवि कालिदास किस राजा के दरबार के रत्न थे। तो महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य के दरबार के रत्न थे। बीजू युवा कालिदास को मूर्ख क्यों माना जाता है। तो युवा कालिदास को मूर्ख माना जाता है क्योंकि वे वृक्ष के जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। मूर्ख युवक ने पंडितों की बात क्यों मान ली। जवाब से मूर्ख युवक ने पंडितों की बात मान ली क्योंकि उन्होंने उसे सुंदर राजकुमारी से विवाह का लालच दिया था। चौथु विद्योत्तमा ने अपने विवाह के बारे में क्या घोषणा की थी। तो एम आवश्य विद्योत्तमा ने अपने विवाह के बारे में यह घोषणा की थी कि जो व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह विवाह करेगी। 5वां पंडितों ने विद्योत्तमा से किस प्रकार बदला लिया। तो पंडितों ने एक मूर्ख युवक से उसका विवाह करवाकर विद्योत्तमा से बदला लिया। गद्य 21 शेखर की कौन सी बात उसके पिता को बुरी लगी। तो शेखर ने अंग्रेजी बालक के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, यह बात उसके पिता को बुरी लगी। शेखर को किसे माँ कहना स्वीकार न था। तो अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा को माँ कहना शेखर को स्वीकार न था। शेखर गला खोल कर क्या गाने लगा। तो शेखर गला खोल कर गाने लगा गांधी जी का बोलबाला दुश्मन का हो मुँह काला। चौथु शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना क्यों छोड़ दिया। तो जवाब आवश्य शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना छोड़ दिया क्योंकि पहनने के लिए देसी कपड़े उसके पास पर्याप्त नहीं थे। 5वां शेखर के मस्तिष्क में कैसी पुकार पहुंचती थी। तो शेखर के मस्तिष्क में एक नाटक का लेखक होने की पुकार पहुंचती थी। त्यारबाद गद्य 23 लेखक को शुरू की पढ़ाई घर पर ही क्यों कराई गई। तो जवाब आवश्य लेखक को शुरू की पढ़ाई घर पर ही कराई गई क्योंकि पिता नहीं चाहते थे कि बच्चा नासमझ उम्र में गलत संगति में पढ़कर बुरे संस्कार सीखे। लेखक को बचपन में क्या शौक था। तो लेखक को बचपन में पाठ्यक्रम से बाहर की पत्रिकाएं पुस्तकें आदि पढ़ने का शौक था। लेखक की माँ क्यों चिंतित रहती थी। तो लेखक की माँ चिंतित रहती थी क्योंकि वे पाठ्यक्रम की पुस्तकें न पढ़कर बाहर की पुस्तकें और पत्रिकाएं अधिक पढ़ते थे। लेखक के पिता कहाँ के प्रधान थे। तो लेखक के पिता रानी मंडी स्थित आर्य समाज संस्था के प्रधान थे। लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी। तो लेखक की प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी सत्यार्थ प्रकाश थी। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एमा आवश्य गद्य नंबर 9 प्रथम परीक्षा के पाठ्यक्रम में से है। तेमा જોઈએ पहला सवाल प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम होता था। जवाब आपसे रविवार को प्रियंदा की टोली पहले से निर्धारित मोहल्ले में मुठिया वसूलने जाती थी। इसी तरह टोली के कुछ लोग बीमार व्यक्ति की सेवा करने जाते थे। त्यारबाद बीजो सवाल मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियंदा ने क्या किया। जवाब आपसे मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियंदा उसे उस रास्ते से ले गई जो बिल्कुल सुनसान और डरावना था। उन्होंने मनमोहन को वह उजड़ा
मकान दिखाया जहाँ पहले मुर्दों की चीर फाड़ होती थी। लोग मानते थे कि वहाँ आसपास के पेड़ों पर अब भी भूत पिशाच रहते हैं और प्रेतनियाँ झुंड बनाकर नाचती है। ત્યારબાદ तीजो सवाल, मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्यनारायण ने क्या कहा? तो जवाब आपसे, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्यनारायण को सौंपी गई थी। इस बारे में उसने कहा कि एक दिन उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। ત્યારબાદ चौथा सवाल, प्रियंका की टोली शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करती थी? जवाब, शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद प्रियंका की टोली बालूचर पर जमा होती है। खेल कूद गाने बजाने के बाद प्रियंका दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं। फिर वे रविवार की सेवा का कार्यक्रम तय करते हैं। पाँचवा सवाल, कस्बे के अधिकांश लोग प्रियंका और साथियों को क्यों पहचानते थे? तो जवाब 6, प्रियंका और उसके साथी हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया मांगकर लाते थे। स्कूल के किसी छात्र या शिक्षक के बीमार पड़ने पर वे उसके अच्छे होने तक उसकी सेवा करते थे। उनके इस सेवा भाव के कारण उस कस्बे में अधिकांश लोग प्रियंका और उसके साथियों को पहचानते थे। ત્યારબાદ गद्य 11 तृतीय परीक्षा के पाठ्यक्रम में से पहलू, थानेदार मसीहा कैसे बन गया? तो थानेदार ने संकट में पड़ी हुई लड़की के मामले में पूरी रुचि ली। उसने युक्तिपूर्वक मोहन के साथ उसका विवाह करवा दिया। इस प्रकार वह मसीहा बन गया। बीजू, लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताते थे? तो बड़े बड़े लोग नारी हित की बातें करते थे पर उन्हें व्यवहार में नहीं लाते। इसके बदले मोहन ने एक लड़की को पत्नी बनाकर उसे दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया। इसी मानवतापूर्ण साहस के कारण लेखक उसे बहुत बड़ा बताते हैं। ત્યારબાદ लेखक ने ऑटो वाले की बात को क्यों दी? तो लेखक ने ऑटो वाले की जिद और आवाज़ में एक प्रकार का आकर्षण महसूस किया। उससे प्रभावित होकर उन्होंने उसके रिक्शे में बैठने की स्वीकृति दी। मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी? तो मोहन का घर आगरा में था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद बड़े भाई ने उसकी परवरिश की थी। बड़ा भाई वकील था और शादीशुदा था। मोहन BA पास करने के बाद नौकरी खोज रहा था। ત્યારબાદ घंटे भर तक अपना इंतजार करने वाले ऑटो वाला के बारे में लेखक ने क्या महसूस किया? घंटे भर तक अपना इंतजार करने वाले ऑटो वाले के बारे में लेखक ने महसूस किया कि ऑटो वाला अन्य ऑटो वाले की अपेक्षा कुछ और है। लेखक को लगा जैसे वह उसके अंदर घर कर गया है। गद्य 21, शेखर ने राष्ट्रीय नाटक लिखना क्यों प्रारंभ किया? तो शेखर अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करना चाहता था। इसी के साथ उसे गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धा और राष्ट्रभक्ति भी व्यक्त करनी थी। इन कारणों से उसने राष्ट्रीय नाटक लिखना प्रारंभ किया। शेखर को अंग्रेजी मातृभाषा क्यों लगने लगी थी? तो शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है। उसके घर में अंग्रेजी ही बोली जाती थी। वह भी बचपन से अंग्रेजी बोलता था, इसलिए शेखर को अंग्रेजी मातृभाषा जैसी लगने लगी थी। तीजू, शेखर के नाटक का विषय क्या था? तो शेखर के मन में एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत की छवि बसी थी जिसके राष्ट्रपति महात्मा गांधी थे। उसमें कई कताई बुनाई जैसी गांधी जी की प्रवृत्तियाँ और असहयोग आंदोलन का समावेश था। शेखर का यह सपना ही उसके नाटक की हलचल में भी समाविष्ट था। शेखर को अंग्रेजी भाषा से घृणा क्यों हो गई? शेखर के मन में विदेशी मात्रा के प्रति घृणा हो गई थी। अंग्रेजी भी विदेशी भाषा थी, इसलिए उसने अंग्रेजी भाषा से घृणा हो गई। 5वां, घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने क्या किया? घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने घर के सभी कमरों में से विदेशी कपड़े लेकर नीचे एक खुली जगह में इकट्ठे किए, उनके ढेर पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। ત્યારબાદ गद्य 23, पिता ने लेखक से क्या वादा कराया? तो लेखक स्कूल की किताबों के बदले बाहर की पुस्तकें ज़्यादा पढ़ा करते थे, इसलिए पिताजी ने लेखक से वादा करवाया कि वह पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी पूरे ध्यान से पढ़ेगा और माँ की चिंता दूर करेगा। ત્યારબાદ लेखक की माँ ने लेखक को कितने रुपए दिए, क्यों?
तो लेखक की माँ ने लेखक को पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए, लेकिन लेखक पुस्तक की दुकान से 10 आने की देवदास नाम की पुस्तक खरीदते हैं। त्रीजू, बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी क्यों अधिक पसंद थी? तो स्वामी दयानंद जी की जीवनी रोचक शैली में लिखी हुई थी और उनके चित्रों में सुसज्जित थी। उसमें स्वामी जी के जीवन की अनेक रोमांचक घटनाएं थी जो लेखक को प्रभावित करती थी, इसलिए बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी अधिक पसंद थी। चौथू, बचपन में लेखक के घर में कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी? तो लेखक के घर में आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती और गृहिणी से ये पत्रिकाएं आती थी। इनके अलावा बाल सखा और चम्मच, ये 2 बाल पत्रिकाएं खास लेखक के लिए आती थी। ત્યારબાદ निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12 અથવામાં પણ તમારે 12 એ જ પ્રશ્ન રિલેટેડ 4 માર્કનો તમારો અથવા પૂછાશે। એમાં તમારે એક સવાલ લખવાનો રહેશે 4 માર્કનો। તેમાં ગદ્ય 2માંથી સૌપ્રથમ સવાલ છે, સમ્રાટ અશોક ગદગદ હો ગए, તો એનો જવાબ આ રીતે તમારે લખવાનો છે। ત્યારબાદ प्रश्न 2, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? તેમાં તમારે જવાબ આ મુજબ છે। प्रश्न 3, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? તેનો જવાબ છે આ રીતે। ત્યારબાદ ન્યાય મંત્રી નિરંतर क्यों हो गए, તો તેનો પણ જવાબ આ રીતે લખાશે। 5, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या किया? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया और शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचान के लिए राजमुद्रा दी। गद्य 8, गुलमोहर की शाम के सौंदर्य के वर्णन कीजिए। आ प्रमाणे છે। ત્યારબાદ लेखक ऐसा क्यों कहता है कि गुलमोहर को भी पूरा देखा नहीं जा सकता, तो आ प्रमाणे છે जवाब। ત્રીજું, प्रकाश, बादल तथा हवा के कारण गुलमर्ग दर्शन में आए रोमांचक का वर्णन कीजिए, तो आ प्रमाणे છે। चौथું, दिन में गुलमोहर की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आ प्रमाणे તમે કરી શકો છો એનું વર્ણન। ત્યારબાદ 5મું, गुलमोहर के एक रात के अविस्मरणीय अनुभव का लेखक ने किन शब्दों में वर्णन किया, तो आ प्रमाणे છે એનો જવાબ। ત્યારબાદ ગદ્ય 21, शेखर का चरित्र चित्रण कीजिए, એનો જવાબ તમારે આ રીતે લખાશે। ત્યારબાદ બીજું, शेखर ने नाटक लिखना कब आरंभ किया, क्यों? આ પ્રમાણે છે એનો જવાબ। ત્રીજું, शेखर के मन में विदेशी वस्तुओं के प्रति घृणा क्यों हो गई, પ્રમાણેનો જવાબ લખાશે। ત્યારબાદ ગદ્ય 23, लेखक को इनाम में मिली पुस्तकों में किनकी जानकारी दी गई थी, તેનો જવાબ છે આ રીતે। ત્યારબાદ माँ के दिए हुए रुपयों का लेखक ने क्या किया, क्यों? તો એનો જવાબ પણ આ રીતે તમારે લખવાનો છે। ત્યારબાદ लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी, वह किन बातों से संबंधित थी, जवाब છે આ રીતે। ત્યારબાદ चौथું, स्कूली पढ़ाई पर माँ के जोर देने से लेखक की पढ़ाई पर क्या असर हुआ, जवाब આ રીતે લખી શકો છો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં જે આપણું સેક્શન એ છે તે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં સેક્શન બી સાથે ફરી મળીશું। જોઈએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં સેક્શન એ પૂર્ણ કરીએ છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જરૂરથી તમે HR એજ્યુકેશનને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને જે બાકીના વિડીયો છે તેનો લાભ પણ તમે લેજો।